Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that from the previous few classes, we are continuously solving some questions, as well as simultaneously we have also discussing about the concept or the topic related to the microeconomics like price determination, elasticity of demand, etc. So in today's class also we are going to do some numerical questions or the examples to solve the median. Okay, so let us take the one example. So here the question is, calculate the arithmetic mean of the daily wages of 10 workers. Okay, so here we have to calculate the arithmetic mean of the daily wages of the 20 workers हैं उनकी जो भी है अर्थमेटिक मीन को हमें कैलकुलेट करना है एंड द मेथड इज द शॉर्टकट मेथड. इट इज़ ऑलरेडी मेंशन. इन द केस अगर क्वेश्चन में आपके ये ऑप्शन नहीं दिया है कि किस मेथड से कैलकुलेट करना है, सो यू विल accept or the adopt these only simple method. But if the in this question, if the question it is not mentioned, so which method we have to adopt, so there is no. But in this question it is already mentioned that you have to select the shortcut method. Okay, so calculated 10 wages of the 10 workers are the given. So wages are वेजेस क्या क्या है 140, 150, 180, 200, 220, 250, 260, 300, 350, and 450. Okay, so wages of the 10 workers are the given here. ठीक है, so हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है by the using shortcut method. Okay, so solution daily wages. So let's start with the solution. So serial number we will take, and next daily wages, and the x minus a. So x d डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, by the x minus a के थ्रू. ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो टोटल यहाँ पे कितने होंगे, टोटल हो गया आपका दैट इज 10. If it is not given in the ascending or the descending order, so first of all we will arrange it. ठीक है, तो but it is already given in the ascending order, so we will write down same as like this: 140, 150, 180, 200, 220, 250, 260, 300 and 450. ठीक है, so next what we have to do, we have to take the assumed mean, means we have to take the a from this, so we can take anyone. So let us take this one is as a assumed mean, right? So what will take, so x is here 140, 140 minus 220, 150 माइनस 220, 180 माइनस 220. सो ये सारा हम लोग क्या है स्टेप वाइज स्टेप करते जाएंगे. तो 140 माइनस 220 माइनस 80 माइनस 70 माइनस 40, 200 माइनस 220 माइनस 20, 0, 30, 40,
80 and 450 minus 220, 230, ठीक है। सो ये आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड ऑल दीज वैल्यू। सो समेशन डी निकाल लेते हैं यहाँ पे, -80 -70 -60 -210, ये हो गया आपका 70 380, सो 380 -210 7 1, समेशन डी इज आ गया आपका 300, ठीक है। सो समेशन डी इज 300। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी विल पुट इट ऑन दी फॉर्मूला। सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। ठीक है। सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। सो यहाँ पे ले लेते हैं, ए यहाँ पे क्या लिया था हम लोगों ने 220, समेशन डी इज 300, एन यहाँ पे क्या है 10, ठीक है, टोटल 10 है। 220 प्लस ये हो गया आपका 30, सो अर्थमेटिक मीन आ गया आपका 250। सो इट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द we can calculate the arithmetic mean with the help of the, simply we can take the by the shortcut method. To the calculation of the arithmetic mean in specific condition, okay। so यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट कंडीशंस दे रखी होगी, स्पेसिफिक कंडीशन में अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कि कैलकुलेशन किसका करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन in case of cumulative frequency distribution, in case of cumulative frequency distribution, okay, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें कह रहा है इफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन, कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहेगी देन द सीरीज विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। उस केस में जो भी सीरीज़ को हम लोग किस में करना पड़ेगा, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो द काइंड ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वुड बी लेस देन और दी मोर देन, ठीक है। तो सीरीज कैसे दी रहेगी, लेस देन और मोर देन दे रखी होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th आर गिवन बिलो। ये जो मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स में, जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 11 के, वो मार्क्स गिवन बिलो है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। हमें यहाँ पे क्या करना है, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसके क्वेश्चन को देखते हैं। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो मार्क्स यहाँ पे क्या है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, 5, 12, 30, 5, 12, 30, 45, 50, 45, 50। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, अभी कह रहा है कि अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो आपका लेस देन 10 हो जाएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाती है ना, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और आपको पता है ये क्या दे रखा है, इट इज गिवन एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, हमें इसका फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो पहला हो गया 5, नेक्स्ट 12 माइनस 5 7, फिर 30 माइनस 12 हो जाएगा आपका 18, देन 45 माइनस 30 15, और 50 माइनस 5 45, दैट इज 5। ठीक है, ये हो गया आपका f। अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m निकालना पड़ेगा। ओके, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे m निकालेंगे। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 0 प्लस 10 अपॉन 20, सॉरी 2, 10 अपॉन 2 5, then 20 plus 10 30, 30 अपॉन 2 हो गया आपका 15, then 20 plus 30 50, 50 अपॉन 2 25, 30 plus 40 70, 72 by 2 that is 35, 40 plus 50 90, 90 plus 2 45। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ एम 5 7, सॉरी 5 15 25 35 45। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एफ एम। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस, 5 5 जा। ठीक है, ऐसे क्या करना है हमें यहाँ पे एफ और एम का मल्टीप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है और हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 5 इंटू 5 5 5 25। नेक्स्ट है आपका 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 इज 10 5। नेक्स्ट है आपका 18 इंटू 25, ये हो गया आपका 450। फिर आपका 35 इंटू 15, 35 इंटू 15 इज 525, और 45 इंटू 5 5 5 25 2 2 5। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, समेशन एफ एम करना है। वन 1330। ठीक है, 1330। अब इसको सम करते हैं, इसका सम देखिए, जब ऐसे लेस देन और मोर देन दिया रहता है तो जो लास्ट होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही हमेशा इसका
सम होता है, तो समेशन एफ हो गया आपका 50. सो एक्स अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ. ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ. ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट, ठीक है. सो 1330 डिवाइडेड बाई 50. तो इसको सॉल्व करते हैं. 5133 5 6 26.6. आपका क्या आ गया, 26.6. ये 26.6 क्या है, दिस इज दी अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन यहाँ पे क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आपका आ गया 26.6. तो दिस इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सबसे पहले क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स, इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, एम निकालेंगे, एम के बाद एफ एम निकालेंगे. है ना, तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन. हम यहाँ से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेट कर लेंगे इन केस जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन. Let's take another question. Okay, so the calculation of the arithmetic mean in case of the open end class interval. Okay, calculation of arithmetic mean in case of open end class interval. Okay, so open end class interval are those intervals which are where the lower limit of the first class interval and the upper limit of the next class interval are not given. ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड दी अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन. ठीक है, सो वी नीड टू एडजस्ट इन क्लासेस इन सच अ वे दैट द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल आर ऑब्टेन्ड. हमें उन सीरीज़ को ऐसे क्या करना है, एडजस्ट करना है जिससे जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है उसको हम लोग क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज
calculate arithmetic mean of the following data by the direct method. Marks or number of students. Marks, number of students. क्या दिया है? Below 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 and above. Okay? और 21421, 21421, राइट. अब हम क्या करना है, हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे ना. जो ये आपका कह रहा था ना कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की क्या होगी, मेंशन नहीं होगी. सो मार्क्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. ठीक है. अब यहाँ पे हमको इसका मिड वैल्यू निकालना है. 10, 30, 50, 70, 90. ठीक है. नंबर एफ क्या दे रखा है, 2, 1, 4, 2, 1. ठीक है. फिर क्या करेंगे नेक्स्ट हमें यहाँ पे करना है एफ एम कैलकुलेट. जब किसी भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहे कि किस मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, सो सिंपली वी गो थ्रू दी सिंपल मेथड, बेसिकली द डायरेक्ट मेथड, सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट दी वैल्यूज, राइट. सो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ एम. तो क्या हो गया, एफ एम 10 into 20, 30 into 1, 30, 50 into 4, 200, 70 into 2, 140 or 90. Right? Now next step is to we will add all these values. Summation f m 50, 200, 140 and 90, 480. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सॉल्यूशन एफ भी करना है. टू प्लस 3, 3 plus 4, 7, 8, 9, 10. आ गया ये हमारा. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक मीन. कंटिन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ. ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पे, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ. नाउ क्या हो जाएगा आपका, एफ एम की वैल्यू क्या है, 480, 10. क्या हो गया ये, 48. ठीक है. सो अरिथमेटिक मीन क्या निकल गया यहाँ पे, 48. ठीक है. ये क्या है आपका ओपन एंड क्लास इंटरवल था. ठीक है. ओपन एंड क्लास इंटरवल था जिसमें आपका लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा. यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू एडजस्ट. ठीक है. हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट क्लास इंटरवल. कि हम ये देखेंगे इन दोनों में गैप कितना है. हमें यहाँ पे सब 20 का गैप दिख रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इसमें भी 20 का गैप और इसमें भी 20 का गैप. तो 20 का गैप करेंगे तो 0 to 20 और इधर करेंगे तो 80 to 100 हो जाएगा. ठीक है. फिर अब क्या करेंगे, ये आ गया 0 to 20, 20 to 40. हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज आर रेडी. तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम निकालेंगे 10, 30,
यही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे सारे का। आ गया एफ आपका दिया हुआ है, एफ एम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द मिड वैल्यू, देन ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, फिर फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन।